Hello everyone. So last class what we have seen is we have seen the introduction part. In that we saw the what is the different progressive waves, and we saw the properties of the progression of waves and how we represent it in terms of position and time, including the velocity. Then we saw the reflection of the waves. Now let's start talking about the superposition. What do we mean by superposition in general? So let's suppose I have one particular wave which is actually something like this, and I have another wave which is something like this. So when I add these two, so if I just try to add these two, so what exactly we do? We just try to do these things, isn't it? And then we find the what is the resultant of it. So the resultant of it is something like this, maybe, possibly. Okay. So we don't know exactly what will be the nature, but we try to find the resultant of it. So that may be something like this or something like, it may be anything. But just for the overall picture, now I can say this green wave is called X wave and this Y wave is Y wave. And when we talk about this particular white wave, which is resultant of these two waves, it is called X plus Y wave. So this is nothing but the superposition. Now we can do this in terms when we have two different waves. So when two or more waves are traveling through a medium, pass through a common point, each wave produces its own displacement at a point. Correct? Now, independent of presence of the other wave, it doesn't matter कि कोई और वेव प्रेजेंट है कि नहीं, लेकिन हर एक के पास अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट है, हर एक पॉइंट अपने खुद से आगे जा रहा है. ठीक है. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ दिस टू. मतलब जैसे कि तुम इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट का एक वेक्टर क्वांटिटी, इस पॉइंट का एक वेक्टर है. अगर तुम दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा. तो वो रिजल्टेंट वेक्टर किसका होगा? ये पॉइंट का, कहीं पे यहाँ पे. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली try to superpose the two different waves. So let's try to understand this in a simple way. Like अगर मैं बुक का एग्जांपल लूं तो बुक में सिंपल लेट्स सपोज t इक्वल टू 0 पे तुम्हारे पास एक वेव है जो ऐसे ऐसे करके आ रही है और एक एक ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है. ठीक है. अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. ठीक है. ये वेव आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, तो आगे बढ़ के वो यहाँ पहुंची. लेट्स सपोज ये वाली वेव यहाँ पहुंची. फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब t इक्वल टू लेट्स सपोज कुछ भी t डैश ले लो या कुछ भी टाइम ले लो, जब ये दोनों वेव मैच कर जाएगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा. करेक्ट. फिर वो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लेट्स सपोज t इक्वल टू t1 पे क्या होना चाहिए? जो वेव ऐसे जा रही थी वो आगे आगे कंटिन्यू करेगी और फिर वो ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी. So this will continue. So it's a hypothetical situation, but still, yes, it gives a lot of it provides us a lot of simplification when you want to deal with the wave. Same thing happen when you are talking about the out of phase positions. Like एक ऐसा है, ठीक है, और एक ऐसा है. तुम मानो कि एक ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है. ठीक है. फिर ऐसा एक टाइम आएगा जब दोनों एक साथ हो गए. ठीक है. दोनों एक साथ हो गए तो क्या हो रहा है? ऊपर का मैग्नीट्यूड ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों को खत्म कर देगा. तो तुम्हें बस एक लाइन दिखेगा, तुम्हें ये अप एंड डाउन दिखेगा ही नहीं. बट अगर तुम नेक्स्ट टाइम पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो वेव है वो आगे बढ़ेगा और ये वाला और आगे बढ़ता जाएगा. बेसिकली दे आर स्टिल ट्रैवलिंग इन अ लाइन. ठीक है. बट क्या हो रहा है? जब वो एक साथ मैच कर जाते हैं तो वो अपने एम्पलीट्यूड को वो वेरी करते हैं. तो हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं. तो अज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक सिंपल सा एक पहला एक वेव है जिसको हम बोलते हैं y1 और उसका एम्पलीट्यूड a1 है और साइनसॉइडल मोशन है ओमेगा टी. और एक फेज पे एक y2 है जिसको हम बोलते हैं a2, जिसको हम बोल देंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ले लो, फाई साई कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. या हाँ ठीक है. नाउ according to the superposition of the principle, what should happen? There should be one new wave which is y1 is equal y is equal to y1 plus y2. हम सिंपल अगर उसको मैथमेटिक्स यूज करें तो लेट्स सपोज an है तुम्हारा साइन ओमेगा टी और a2 है तुम्हारा साइन ओमेगा टी प्लस सम फाई. ठीक है. फाइन. अभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो तुम. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या कहेगी तुम्हारी? अगर ये a1 है, ठीक है, और ये a1 साइन ओमेगा टी है, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा. करेक्ट. सो साइन अल्फा, सो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई. ऐसा रहेगा. नाउ
Yeah, so basically this is very a very easy trigonometry part. Okay, what I want to do is I want to write in terms of वेव फंक्शन. सो जनरली मुझे ओमेगा टी के फंक्शन में चाहिए, तो सारे ओमेगा टी वाले एक तरफ रखो और फाई वाले एक साथ करो. तो क्या करेंगे हम अभी, सिंपल एनालॉजी यूज करो. एक a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5. ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला साइन ओमेगा टी वाला टर्म चाहिए. तो कहाँ पर है अपने पास, यहाँ पे हमारे पास ये वाला टर्म है. तो इसमें से मैं साइन ओमेगा टी बाहर निकाल सकता हूँ. फिर मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ठीक है, ये a1 प्लस a2 कॉस 5 ऑफ साइन ओमेगा टी. करेक्ट. नाउ दूसरा टर्म क्या है हमारा, a2 कॉस सॉरी साइन 5 cos omega t. So you see, we have one amplitude, another amplitude, and then we have sin omega t cos omega t. So that represent that. Actually तुम चाहो तो एक काम कर सकते हो. So more simplification अगर मैं करूँ तो let's say simple कि a1 plus a2 cos phi को मैं कुछ cos ले लेता हूँ. Let's suppose a cos theta ले लेते हैं हम. ठीक है, a cos theta ले लेते हैं. एंड जो a2 sin phi है तुम्हारा, उसको ले लेते हैं a sin theta. ठीक है, it's a simple trigonometry. Having keeping the same amplitude, I can just say, okay, so a cos theta sin omega t, a sin theta cos omega t. Now this is again a sin omega t plus theta ka equation, isn't it? So what do we got? We had one y is we have the superposition of the two wave, and again we got the new wave which is also sinusoidal wave, but now it has a different phase angle and different amplitude. This amplitude can be a plus a minus. जैसे हमने पहले केस में बताया था कि अगर फेज है, फेज आउट है दोनों के बीच में, तो फिर हम बोल सकते हैं कि दोनों कट हो रहे हैं. ऐसा फेज है और ऐसा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक टाइम पे दोनों कट हो जाएगी नेगेटिव की, ये एम्पलीट्यूड तुम्हें जीरो मिल जाएगा. और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि दोनों ऐड हो सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू. सो दिस इज हाउ यू कैन कमेंट कि चलो मेरे पास एक साइन मोशन, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट इज दिस ए, हमें पता तो चलना चाहिए ना. हमने ये तो प्रूव कर दिया कि चलो ये जनरल सुपरपोजिशन से तुम्हें जो नया मिल है वो भी साइनसोइडल वेव है. बट व्हाट इज इट एक्जेक्टली? सो वी नो दैट what is it a cos theta. We already assumed this, right? So a cos theta is equal to a1 plus a2 cos phi. a1 plus a2 cos phi. And what is a sin theta? a2 sin phi. स्क्वायर करो, ऐड करो, सिंपल सी बात है. सो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा is equal to a1 plus a2 cos phi होल स्क्वायर प्लस a2 sin phi होल स्क्वायर. ठीक है, अगर तुमने इतना कर दिया तो तुम बोल सकते हो कि चलो a स्क्वायर बाहर निकाल दिया, तो उसके बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो हो गया तुम्हारा 1. फिर तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. करेक्ट. सो इट इज a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi. अगर तुम ये दोनों को कंबाइन करो तो तुम वापस a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो. करेक्ट. So for this if you do the further simplification, you got a1 square, अगर a2 square into क्या लिखोगे, cos square 5 plus sin square 5. So it is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos 5. ठीक है. So now what is the amplitude you got? a1 square a2 square plus 2a1 a2 cos 5. ठीक है. So this is the simplest way you can just understand कि चलो मुझे एम्पलीट्यूड मिल गया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल केस में, जहाँ मैंने बोला कि चलो एक फाई है, तुम्हारा जीरो है. बेसिकली क्या है, दिस इज द वेव आर इन फेज. सो यू कैन बोल, ये ऐसे बोल सकते हो, इन फेज कंडीशन. ठीक है, अगर ये सिचुएशन है, इन फेज कंडीशन है, तो तुम क्या बोलोगे बेसिकली इन फेज सिचुएशन में? तुम ये बोलोगे कि या ठीक है, तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड बेसिकली इन फेज एडिशन होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट करो. इन फेज मतलब ऐसा होना चाहिए. करेक्ट. तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा ऐसा मिडल में जब मैच कर जाएगा तो ऐसा बड़ा होना चाहिए. करेक्ट. तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें. सो इट इज नथिंग बट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of 0 is 1. नाउ से a1 एंड a2 सेम है. ठीक है, a1
इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू सम कुछ भी ले सकते हैं एक्चुअली। चल लेट्स सपोज अवॉइड करो ये, चलो ये अवॉइड करो और मैं जनरलाइज होने देखता हूँ, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये केस लाने की जरूरत नहीं। हम सिंपल बोल सकते हैं कि अच्छा ये दिस इज द केस, देन दिस इज A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 plus A2 square. So what is this? It is nothing but x plus y whole square formula, correct? So you can just say A is nothing but A1 plus A2. So it's just addition of 2. You can just simply say अगर ये A1 था, ये A2 था, so then this new amplitude is A1 plus A2, correct? Now similarly, what if अगर वो out of phase तब क्या करोगे, ठीक है? So अगर as per our definition क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या फिर क्या exactly क्या होना चाहिए, सोचो। जीरो होना चाहिए, करेक्ट? तो तुम वो भी निकाल सकते हो। नाउ लेट्स से मेरे पास एक और केस है जब मैंने ये बोल दिया कि व्हेन फाई इज आउट ऑफ फेज बेसिकली, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू पाई, सो इट्स कॉल्ड आउट फेज, ठीक है। तब तुम्हारा ये क्या आना चाहिए, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ क्या होगा, पाई। ना कॉस पाई क्या है, -1, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 -1। तो इसका मतलब तुम्हारा फाइनल इक्वेशन क्या आना चाहिए, A1 माइनस 2A1 A2 प्लस A2 स्क्वायर। सो इस केस में तुम बोल सकते हो ये दिस इज नथिंग बट A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट A1 माइनस A2, करेक्ट, A1 माइनस A2। अगर तो अभी आउट ऑफ फेज है, अगर मैंने अपना प्रीवियस वाला केस लिया, और याद रखिए मॉड स्क्वायर रूट के अंदर जब स्क्वायर होता है तब हम उसको मॉड लिखते हैं पाइथन में, क्योंकि वो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर रूट की दो वैल्यू पॉसिबल है। क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस होने से हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम वो कंडीशन हम लिखनी पड़ती है। तो जस्ट फॉर द कंप्लीशन में ये बता देता हूँ, ठीक है। नाउ अगर लेट्स सपोज मेरा पहले वाला केस है, तो एक ऐसा फेज आ रहा था, एक ऐसा फेज आ रहा, मैंने बोल दिया कि ये A1 है और ये A2 है, तब ये दोनों जब साथ में मिल रहे हैं ऐसा करके, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, A1 और ये A2 सबस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो टोटल होगा वो A1 माइनस A2 होगा। मैंने ये अज्यूम किया कि ये दोनों A1 A2 सेम है। लेट्स सपोज ये जब आगे जा रहा था और ये ऐसे आ रहा था, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू लेट्स से सम B है, ठीक है, ठीक है। So what is it now? So what should be this when they are together? What should be the amplitude now? The new amplitude here should be A1 minus A2 is equal to 0. So that's what we are getting from this also, correct? So that proves a theory part also. So it's a simple, double check you can just say. Now, thus the maximum amplitude is the sum of the two amplitude when the phase difference between two waves is 0, and the minimum amplitude is the difference of two amplitude when the phase difference between them is pi. Very simple. Now remember, the intensities of the waves are proportional to the square of their amplitude. So I'll just write that. So intensity is a square proportional to square of their amplitude. So this we use a lot. So when we say intensity is maximum, it means maximum means basically क्या है maximum condition, मतलब when तुम्हारा phi 0 है in phase, ठीक है। So Imax should be what, proportional to Amax whole square, amplitude का square। यहाँ पे अगर मैं superposition of two different wave ले रहा हूँ, तो what should be actually, what it should be basically, it should be A1 plus A2 whole square, correct? Now similarly, minimum intensity क्या होना चाहिए, minimum intensity should be, it is also same, A square proportional to A square, but minimum intensity क्या होना चाहिए, A1 minus A2 whole square, isn't it? A1 minus A2 whole square. So अगर तुम सिंपल बोलो कि A1 और A2 दोनों सेम है, तो तुम्हारा मिनिमम इंटेंसिटी कितना आएगा, so तुम बोल सकते हो कि if A1 is equal to A2 is equal to A, then Imax is equal to 2A and Imean is equal to 0। ये एक मार्क में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। So I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। In next lecture we'll proceed with the new concept, ठीक है।